Hello students, we are continuing MCQs based on case scenario. This case scenario is based on William Sharp portfolio theory. So let us see data given in this scenario is SB Mutual Fund Company has launched a mid-cap fund to provide higher return and growth to its investors. This fund will consist of three equity stocks A, B and C in its portfolio. Details of these stocks are as follows. तो तीन सिक्योरिटीज हैं आपकी विच आर इक्विटी स्टॉक्स है ABC. So its standard deviation of return is given 20, 18 and 12 and correlation with the market index is given 0.60, 0.95 and 0.75 and the standard deviation of market index Nifty is estimated as 15%. So different MCQs are number one. So we have to determine a beta of a portfolio consisting of equal investment in each stock. तो तीनों स्टॉक्स जो हैं उनका बीटा पहले आपको डिटरमिन करना है एंड देन वी कैन डिटरमिन बीटा ऑफ पोर्टफोलियो और जिसमें आपका वेट है इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच स्टॉक. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड डेटा ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आपको देखो तीन स्टॉक्स मेंशन किए हैं ABC and its standard deviation is given which is over sigma and this is in percentage which is for ABC is 20, 18 and 12. Then correlation with market index is given which is also called as rho. This is of IX stock with market index. So this is 0.60 and 95 and 0.75. So then we are given a standard deviation of market index which is a standard deviation of market index. This is 15%. So now they are asking calculate beta of a portfolio and weights are equal. So weights are 3 securities, so this will be 1/3. So let us see MCQ number 1. So we have to calculate first of all beta of each security. So what will be formula of this beta of a security is correlation of a security with market into standard deviation of security divided by standard deviation of market. So correlation is given to us, standard deviation of market is given and of stock is also given. So you can calculate what is the beta of A. So beta of A is correlation 0.60 into 20 by 15. So this is coming to 0.8. Then beta of stock B. So this is your correlation 0.95 times standard deviation 18 by 15. So let us see what is this beta. This is 18 times 0.95 divided by 15. This is 1.14. And then they are asking what is beta of C. This will be correlation 0.75 into standard deviation 12 by 15. So this will be 12 into 0.75 divided by 15. 0.6. Now you can calculate the beta of a portfolio. That will be beta of each stock and multiply with its weight. तो वेट्स आप देखेंगे सभी के इक्वल हैं 1/3. तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकती हैं 0.8 प्लस 1.14 प्लस 0.6. वेट आपका कॉमन है 1/3. So this will be portfolio beta 0.8 plus 1.14 plus 0.6 divided by 3. This is 0.8467. Now you can see which option is correct. So option C is our answer. Option is C. तो इसलिए बीटा हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं जो आपने कैलकुलेट किए. बीटा ऑफ ईच स्टॉक इज 0.8, 1.14 and 0.6 and beta of a portfolio we have calculated this is 0.8467. ये आपकी यूज हो जाएगी बाद में फर्दर क्वेश्चन में. सेकंड जो MCQ दे रहा है डिटरमिन कोवेरिएंसेज अमंग स्टॉक्स AB, AC एंड BC. अब आपने कोवेरिएंसेज कैलकुलेट करनी है फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. दिस इज MCQ नंबर 2. तो आप देखिए कोवेरिएंस का फार्मूला क्या है. आपके पास कोई रिटर्न कोई है नहीं, बीटा बस आपके पास है. तो इसका बेसिक फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ टू स्टॉक्स लेके से IJ
इज इक्वल टू बीटा ऑफ आई जे, बीटा ऑफ आई एन जे इनको वेरियांस ऑफ मार्केट। तो ये आपका स्पेशल फॉर्मूला है, जब आपके दो स्टॉक्स होते हैं उनके बीटा दिए हैं और मार्केट का वेरियांस है, उसके थ्रू आप उसका कोवेरियांस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव बीटा ऑफ ईच स्टॉक, बीटा 1 2 एंड 3। so let us see what is covariance इनको 1.14 और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15, तो हमें चाहिए वेरियांस। सो दिस विल बी 15 स्क्वायर इनटू 15 स्क्वायर। सो दिस विल बी कोवेरियांस। सो 0.8 इनटू 1.14 इनटू 225, दिस इज 205.2। सिमिलरली फॉर कोवेरियांस ऑफ ए विद सी, सो ए का बीटा है आपके पास 0.8 एंड बीटा ऑफ सी इज 0.6 इनटू 15 स्क्वायर इज 225। so 225 into 0.48, this is 108, यानी कि जो कोवेरियांस ऑफ बी विद सी, तो बीटा ऑफ बी 1.14 इंटू 0.6 इंटू 225, तो 1.14 इंटू 0.6 इंटू 225, दिस इज 153.9। These are covariance equation. You can see which option is correct. So option B is correct. So answer is option number B. Next we have MCQ number 3. So they are asking determine total risk of portfolio of 3 stocks in equal proportions according to Markovitch portfolio theory. अब आपको पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोविच पोर्टफोलियो थ्योरी, सो फार्मूला जिसमें पोर्टफोलियो रिस्क, तो पहले आपका वेरियांस कैलकुलेट होगा। सो यू टेक वेरियांस ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेरियांस ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस वेरियांस ऑफ सी वेट ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स को वेरियांस ऑफ ए बी इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स को वेरियांस ऑफ ए सी वेट ऑफ ए वेट ऑफ सी प्लस 2 टाइम्स को वेरियांस ऑफ बी सी वेट ऑफ बी एंड वेट ऑफ सी। तो इसमें सभी आपके कोवेरियांस यूज हो जाएंगे। तो लेट अस अप्लाई। तो आप देखेंगे वेट जो है आपका सभी का 1/3 है, उसका जब स्क्वायर होगा ये बन जाएगा 1/9 1/9 1/9, हेयर आल्सो 1/3 इंटू 1/3 1/9। तो उसको कॉमन कर रखे हैं। सो 1/9 इज कॉमन, सो यू टेक वेरियांस ऑफ ए जैसे 20 स्क्वायर, तो किसी के 20 स्क्वायर, वेरियांस ऑफ बी 18 स्क्वायर, वेरियांस ऑफ सी 12 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स को वेरियांस ऑफ ए बी, सो को वेरियांस इज 205.2 प्लस 2 टाइम्स को वेरियांस ऑफ ए सी 2 टाइम्स 108 प्लस 2 टाइम्स को वेरियांस ऑफ बी सी 153.9। अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए इनके वेट से, दिस इज 1/9। तो लेट अस सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल 20 स्क्वायर इज 400, 18 स्क्वायर दिस इज 324 प्लस 400 प्लस 12 स्क्वायर इज 144। तो दिस अमाउंट इज 868 प्लस 2 टाइम्स ऑल की जो कोवेरियांस है, इसमें भी आप देखेंगे 2 कॉमन है। सो लेट अस टेक दिस कॉमन, यानी कि 205.2 प्लस 108 प्लस 153.9 टाइम्स 2 934.2, so divided by our 9 plus 868 divided by 9, so this amount is coming 200.24। ये आपका वेरियांस है पोर्टफोलियो का, बट हम आंसर देखें इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बट इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, तो इसका कर दीजिए आप स्क्वायर रूट, जिसे 14.50 आंसर। So you can see which option is correct. So here option A is correct. So answer is option A for third MCQ. Next we have fourth MCQ. They are asking determine portfolio systematic means market risk according to William Sharpe portfolio theory. तो आपको MCQ फोर्थ में कैलकुलेट करना है मार्केट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो किसे डिनोटेड जाएगा पोर्टफोलियो मार्केट रिस्क एज पर विलियम शार्प पोर्टफोलियो थ्योरी। तो इस फार्मूला है
you take beta of portfolio. So as per sharp portfolio query, portfolio market risk is equal to beta of portfolio is square into market variance. तो beta आपके पास है portfolio 0.8467 x स्क्वायर इनको मार्केट का स्टैंडर्ड डिवीजन है 15 एंड इट्स स्क्वायर. So this will be market risk of a portfolio. So it is 0.8467 x square so into 225. This is 161.303. So this is your market risk and you can see which option is correct. So option C is correct. So answer is your option number C. So next we have MCQ number 5. They are asking determine total risk and unsystematic risk of a portfolio according to sharp portfolio theory. तो according to sharp आपको कैलकुलेट करने हैं टोटल रिस्क तो एज वेल एज अनसिस्टेमेटिक रिस्क. तो पहले उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अनसिस्टेमेटिक रिस्क ऑफ ईच सिक्योरिटी. देखिए आल्सो कॉल्ड नॉन मार्केट रिस्क और रेजिडुअल रिस्क. तो उसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं सिग्मा आई ई से. ये आपका आ जाएगा रेजिडुअल वेरिएंस भी कहते हैं. तो इसका फार्मूला है टोटल देखो कितना रिस्क है सिक्योरिटी में और उसका माइनस कर दो आप मार्केट रिस्क. देखिए बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट वेरिएंस. तो ये आपको कैलकुलेट करना है फॉर ईच सिक्योरिटी. लेट अस सी फॉर सिक्योरिटी नंबर ए. तो एक से टोटल रिस्क की 20 तो उसका कीजिए स्क्वायर जिस 400 एंड एक्स बीटा है जो 0.8 स्क्वायर एंड मार्केट वेरिएंस है जो जिस 15 स्क्वायर. उस तरीके से पहले आपको तीनों सिक्योरिटीज के रेजिडुअल वेरिएंस ही कैलकुलेट करने हैं और उसको हम यहाँ शो कर रखे हैं सिग्मा आई ई स्क्वायर. तो जिसे जो 225 इनको 0.64 सो माइनस 400 जिसे कमिंग 256 यानी फॉर सिक्योरिटी डी यानी कि 18 स्क्वायर जिसे जो वेरिएंस है 324 माइनस बीटा इज 1.14 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर. सो 1.14 स्क्वायर इंटू 225 माइनस 324 जिसे 31.59 यानी फॉर सी सिक्योरिटी. टोटल रिस्क 12 स्क्वायर 144 माइनस बीटा इज 0.6 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर. तो किसी 225 इंटू 0.36 माइनस 144 जिसे 63. ठीक है आपके रेजिडुअल वेरिएंस आ गए हैं हर सिक्योरिटी के जिसे कि 256 यानी 31.59 एंड 63. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बल्कि पोर्टफोलियो रेजिडुअल रिस्क पहले हमने कैलकुलेट किया है ऑफ ईच सिक्योरिटी. नाउ लेट अस सी व्हाट इज पोर्टफोलियो रेजिडुअल रिस्क. रेजिडुअल को हम ई से डिनोट करते हैं तो फार्मूला बन जाता है रेजिडुअल वेरिएंस ऑफ ईच सिक्योरिटी इनटू वेट स्क्वायर एंड समेशन. क्योंकि ये सारा वेरिएंस में चल रहे हैं तो वेट का आएगा स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 256 प्लस 31.59 प्लस 63. सभी को आपने मल्टीप्लाई करना है. वेट है 1/3 का स्क्वायर 1/9 से ये कॉमन निकल जाएगा डिवाइडेड बाय 9. दिस विल बी रेजिडुअल वेरिएंस 256 प्लस 31.59 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 9 दिस इज 38.95. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज पोर्टफोलियो टोटल रिस्क अकॉर्डिंग टू शार्प पोर्टफोलियो थ्योरी. सो टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो दैट इज इक्वल टू पोर्टफोलियो मार्केट रिस्क एंड प्लस पोर्टफोलियो रेजिडुअल रिस्क. अब देखो मार्केट रिस्क आपने कैलकुलेट किया था अभी एमसीक्यू नंबर 4 में 161.303 और प्लस कर लीजिए अब आप 38.95 विच रेजिडुअल. ये बन जाएगा आपका टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो. So this we are getting 161.303 plus 38.95 200.25 and that is equal to portfolio का देखो मार्केट रिस्क है 161.303 and plus 38.95. बट नॉर्मली हम आंसर कहते हैं. वैसे आपका ये वेरिएंस भी ठीक है
but हम आंसर कहते हैं नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. So you take x as standard deviation and you take x as standard deviation. और ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर. सो दिस विल बी अवर बैलेंसिंग फिगर. लेकिन सी दिस वन 200.25 का जो कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.15 and this is 161.303. So divide under root is 12.70 and balance is our residual risk 14.15 minus 12.7 1.45. and you can verify कि जो टोटल जो रिस्क है आपका ये सेम है एज पर मार्कोविच पोर्टफोलियो थ्योरी एंड एज पर विलियम शार्प पोर्टफोलियो थ्योरी. So now our answer is they are asking what is total risk. So total risk of a portfolio is 14.15 and non-market risk of this portfolio is 1.45. तो ये है वो भी आप दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जिस इज 12.70. So let us see which option is correct. You can see option B is correct. So in this lecture we discuss the case scenario based on William Sharpe portfolio theory. Further topics we will continue in next lecture से. वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.